there are two part of this chapter. So here are two parts of this chapter. First part is part 1. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. है ना? And the next part is the Shahnai of Bishmillah Khan. Okay, there are two parts of this chapter. So let's discuss question answers of chapter 2. Okay, uh, yesterday I conducted the oral test of chapter 1. It was very good. You all prepared your tests yesterday. So बहुत अच्छा टेस्ट था बेटा आप सभी का. It was really good. Now let's learn chapter number 2. अब जब भी आपका ऑरल टेस्ट लिया जाएगा तो आप इसका यही चैप्टर का द साउंड ऑफ म्यूजिक का कंडक्ट किया जाएगा. क्लियर? So this lesson is a biographical piece of a Evelyn Glenn. She lost her power of hearing in her childhood. She achieved success and recognition through determination, hard work, and courage. है ना? As we have discussed in this chapter, there was a girl whose name is Evelyn Glennie. She lost her power of hearing in her childhood, but she achieved success being a dumb child, and she had a good recognition through his determination, hard work, and courage. She was very courageous girl. You know? Now let's discuss questions of this chapter. Questions can be asked from anywhere, as I told you yesterday in your Zoom class. Okay, so prepare yourself properly, read thoroughly your chapter. Okay, so when and how was Evelyn hearing problem noticed? कब उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कब नोटिस की गई? ठीक है. She was 8 years old when her hearing problem was noticed by मैम आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम मैम आप म्यूट हो. मैम
मैम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैम यस। मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। मैम आप म्यूट हो। पुष्पिंदर आपको मैम की आवाज आ रही है? नो। क्लास ओवर। बेटा गिव मी रिस्पॉन्स, अभी तो मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, whatever we were discussing, Evelyn was 8 years old when she hearing problem was noticed by her mother. है ना, उनकी प्रॉब्लम किसके द्वारा नोटिस की गई थी? उनके मदर के द्वारा। हर लॉस ऑफ हेयरिंग वॉज ग्रेजुअल, है ना, जो वो धीमी धीमी सी उनकी जो इस हेयरिंग पावर थी वो लॉस हुई थी। वन डे शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, एक दिन वो वेट कर रही थी। हर नेम वॉज कॉल्ड बट शी डिडंट सीम टू हेयर, ठीक है, उसको बुलाया गया लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड परक्यूशनिस्ट रॉन फ्रॉप्स हेल्प एविलियन इन हर कैरियर। हाँ, कि जो उनके जो म्यूजिशियन थे, परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने हेल्प कैसे की? रॉन फ्रॉप्स द परक्यूशनिस्ट बिगैन by turning to large drums to different notes. He asked her not to listen through her ears. He asked her to try to sense them in another way. And he gave them two large drums. He has changed two large drums into a different notes. He asked her not to listen through her ears. He asked her to try to sense them in some other way. This helped reveal. उन्होंने क्या बोला कि उसको सुनने की वजह से उसको फील किया जाए. That's how he helped her. How did Ron Froms help Elaine to continue with music? कैसे जो रॉन फ्रॉब्स ने उन्होंने हेल्प की थी कि वो कंटिन्यू कर पाए? एवेलिन वॉज अ गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, है ना, वो बहुत डिटर्मिन गर्ल थी. रॉन फ्रॉब्स डिस्कवर्ड हर टैलेंट इन म्यूजिक.
उन्होंने उसका जो टैलेंट था वो डिस्कवर किया था। ही हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक, उन्होंने उनकी कोशिश की थी उस हेल्प करने की कि वो म्यूज़िक के साथ कंटिन्यू कर पाएँ। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन दो ईयर्स बट वाई सम अदर वे सडनली ही रियलाइज द ट्यून्स ऑफ द वेस्ट अप एंड डाउन, है ना। तो उसने रियलाइज़ किया कि कैसे जो ट्यून्स हैं वो वेस्ट अप और डाउन हो रही हैं। Forbes repeated the exercise, उन्होंने फिर उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। Then he sensed certain notes flowing in different parts of the body, उससे अपनी जो सेंसेस थी बॉडी पार्ट से उससे हेल्प मिल रही थी। What kind of What kind of recognition did Evelyn get in Royal Academy of Music? उसे कैसी पहचान मिली? When she was 17, she joined the Royal Academy of Music. She scored the highest marks in the history of the academy. है ना, उसे highest marks मिले. She was one of the most brilliant students of the academy, and she was very brilliant, and she won many awards during 3 years course. इसमें बहुत सारे उसने awards जो थे वो लिए थे. Evelyn never looked back. How did वो हमेशा पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। हाउ डिड शी डू सो, वो ऐसा कैसे करती है। एवलिन रोज टू द हाईएस्ट लेवल इन द म्यूजिक थ्रू डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, उसने हाईएस्ट जो लेवल था वो डिटर्मिनेशन तक, डिटर्मिनेशन से हेल्प लेके, डिटर्मिनेशन की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से इतने हाई पीक पे पहुंची थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, शी वांटेड टू मेक हर लाइफ, है ना, म्यूजिक को लाइफ बनाना चाहती थी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, उसने ऑडिशन ले लिया था बाय प्लेइंग द xylophone, xylophone को प्ले किया था। शी स्कोर्ड the highest in its history. She moved the orchestral work to solo performances. Solo performances से वो एक orchestral work उसने join कर लिया था। एवेलिन, what does Evelyn say about music? एवेलिन जो थी वो म्यूजिक के बारे में क्या कहती थी? According to her, music pours through every part of the body. कि जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो एवेलिन है वो म्यूज़िक है, वो क्या सोचती थी कि म्यूज़िक पोर किया जाता है। पोर मतलब डाला जाता है ना, ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर, मतलब फील किया जाता है। स्किन को वो टिंगल करता है ना, हमारे हेयर को भी वो फील होता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी, शी कैन फील द साउंड पासिंग अप टू द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उसे फील होता था कैसे जो म्यूजिक है उसके फिंगर टिप्स में पास हो रहा है। By hearing against the drums, she can feel her resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes that the vibration pass through her fair bare feet up to in her body. वो क्या सोचती थी जब उसने उस वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दी, तो उसने अपने शूज़ रिमूव कर दिए थे सो दैट शी कैन फील थ्रू हर बेयर फीट अप इनटू हर बॉडी, के बॉडी तक फील कर पाई। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ एवेलिन इंस्पायर्ड द डेफ चिल्ड्रन। वो कैसे मोटिवेट करती थी डेफ चिल्ड्रन को। एवेलिन इज herself a deaf girl, वो खुद एक डेफ गर्ल थी, बट हर handicaps never came in her way, मतलब हैंडीकेपनेस जो था वो उसके रास्ते में कभी भी नहीं आता था, है ना। वो फील नहीं करती थी कि वो हैंडीकैप्ड है ना। शी बिकेम अ वर्ल्ड रिनोन्ड मल्टी प्रोफेशनिस्ट, वो मल्टी प्रोफेशनिस्ट बन चुकी थी, इंस्पिरेशन बन चुकी थी। इफ शी कैन डू इट आई कैन। बच्चे क्या सोचते थे कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं देन एनीबॉडी कैन डू, तो कोई भी ऐसा कर सकता है। क्लियर। None with bushy beards give me trouble, say 11 by। उसने क्या बोला कि मैन जो हैं जिनकी बियर्ड बुशी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो उन्होंने मुझे ट्रबल दिया, इसका क्या मतलब था। Evelyn says that men with bushy beard give her trouble because she wants to read the lips। वो क्या करना चाहती थी, लिप्स को रीड करना चाहती थी, बट टू डू सो शी हैज़ टू लुक एट द होल फेस। उसके लिए लिप्सिंग को फील करने के लिए उसे पूरे फेस को पहले देखना होता था, है ना, ताकि वो लिप्सिंग को थी, उसे जो लिप्स थे लिप्सिंग को दूसरों के लिए बोलने के तरीके से, जैसे कोई पर्सन लिप्सिंग कर रहा है ताकि उसे पता लग सके। द फेस ऑफ द बियर्ड मैन हाइड्स द लिप्स, जैसे ही वो
मैन था जिसे वो सुनना चाहती थी, जिसके लिपसिंग सुनना चाहती थी, उसकी बेयर्ड बहुत ज़्यादा थी और उस बेयर्ड की वजह से उसका फेस जो था पूरा छुप गया था, उसके लिप्स छुप गए थे। सो शी कांट रीड द लिप्स, वो लिप्स को रीड ना कर पाई बिकॉज ऑफ द बुशी हेयर की वजह से वो नहीं कर सकती थी ऐसा। मूव टू नेक्स्ट देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डिड एवेलिन हेयर म्यूजिक, वो म्यूजिक कैसे सुनती थी? बिकॉज शी वॉज डेफ, वो डेफ थी, बट शी हैज़ लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। लेकिन उसने सीख लिया था कि अपने माइंड को और अपनी बॉडी को म्यूजिक सुनने के लिए अपने माइंड को कैसे ओपन रखना है। ठीक है, उसने ये चीज़ जो थी वो सीख ली थी। हर वे ऑफ हेयरिंग म्यूजिक, म्यूजिक pours in through every part of the body, म्यूजिक tingles in the skin, वो अपनी स्किन से, अपनी चीक बोन से, अपने हेयर के थ्रू वो क्या कर सकती थी, सेंस कर सकती थी कि जैसे फिंगर टिप्स के द्वारा जो म्यूजिक था वो फील कर सकती थी कि म्यूजिक कैसे उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, और बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द nuances flowing into her body, है ना। ऑन द wooden platform she removes her shoes so that vibration can pass her barefoot up her legs, और उसने उस वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अपने शूज़ थे वो रिमूव कर दिए थे ताकि जो वाइब्रेशन है वो पास हो सके उसके जो नंगे पाँव थे, ताकि जो वाइब्रेशन है नंगे पाँव से लेग्स की तरफ जा सके। ठीक है, हु हेल्प एवेलिन ग्लेनी टू कंटिन्यू विद, किसने हेल्प की थी, है ना। वन डे एवेलिन ग्लेनी नोटिस अ गर्ल, उन्होंने क्या किया था कि एक गर्ल को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा था। शी वांटेड टू प्ले टू, वो खुद भी उससे प्ले करना चाहती थी, बट मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हो, उसे टीचर क्या करते थे, डिस्करेज कर सकते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकती, है ना, यू आर नॉट एबल टू डू दिस। सो स्कूल परकशनिस्ट हुज नेम वाज रोन फ्रॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसका पोटेंशियल को देखा। ही हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, उन्होंने हेल्प की ताकि वो अपने म्यूजिक के साथ कंटिन्यू कर पाए। He began by turning to large drums to different notes, उन्होंने उस ड्रम्स को नोट्स की तरह यूज़ किया और क्या बोला, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सुनने की कोशिश ना करना, इसको किसी और तरीके से समझने की, फील करने की कोशिश करना। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Yes, next part, the Shahnai of Bismillah Khan. Okay. Why was Pungi banned by Aurangzeb? औरंगजेब ने पुंगी बैन क्यों कर दी थी? Because she didn't like the sound of Pungi, क्योंकि उन्हें वो साउंड अच्छी नहीं लगती थी। He found it shrill and unpleasant, उन्हें वो कोई प्लेजेंट नहीं लगती थी। He decided to ban it use in the royal residence, है ना, कि इसको बैन कर देंगे। Later on it was perfect by a barber, लेकिन उसे परफेक्ट बना दिया गया था, उसकी साउंड जो अनप्लेजेंट लगती थी, he has changed unpleasant sound into pleasant sound and he had perfected, उसे उसने perfect बना दिया था। Clear? Next question. What name was given to the improved version of Pungi and how? कैसा नाम उसे, जो उसका वर्जन था वो कैसे चेंज कर दिया था? अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, जो बार्बर था एक फैमिली का और प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, उसने उसकी क्वालिटी अच्छी कर दी थी। ही चोज अ पाइप, उसने एक पाइप चूज कर ली थी विद अ नेचुरल हॉलो, जिसमें होल्स थे, है ना। द स्टेम वॉज नो लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, जो स्टेम यूज़ की थी वो पुंगी से ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। ही मेड 7 होल्स, उसने उसमें होल बना दिए थे। ही प्लेड इट, इट गेव आउट अनप्लेजेंट साउंड, और वो बहुत अनप्लेजेंट साउंड देती थी। इट वॉज नेम सो आफ्टर इट वॉज इंस्ट्रूमेंट मेड बाय नाई, वो नाई ने बनाई थी, बार्बर ने बनाई थी। ठीक है, एंड फर्स्ट प्लेड, वो पहली बार एम्परर, औरंगजेब के एम्परर के महल में उसको पहली बार प्ले किया गया। शहनाई इज़ अ वर्ड क्वाइंड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स शाह नाई। ठीक है, दो वर्ड्स जो थे उनको जोड़ के उसका नाम शहनाई बोल दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट है
What was the thought about the sound of शहनाई? उसके बारे में क्या thought है? The sound of the शहनाई began to consider auspicious. That is why it is still played in temples. है ना? उसकी जो उसकी साउंड थी उसे ऑस्पिशियस माना जाता था, है ना, कि ये कभी कभी ओकेजन्स पे ही प्ले की जाती थी, ज़्यादातर टेम्पल्स में की जाती थी, है ना। जो नॉर्थ इंडिया है वेडिंग पे उसको प्ले किया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अप टू क्लासिक स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो क्रेडिट है उसे इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल एक स्टेज तक ले आने का वो किसे जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए? उन्होंने क्यों मना कर दिया था कि वो शहनाई को स्कूल में प्ले नहीं करेंगी, है ना? बिकॉज बिस्मिल्लाह खान फाउंड ऑफ बनारस, वो बनारस में रहने के शौकीन थे, जो वहाँ पे रिवर गंगा है ना, और उनके बहुत सारे डिसाइपल्स भी थे। वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स वांटेड टू हेड अ स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, वो हेड बनाना चाहते थे। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, है ना, कि मैं शहनाई स्टार्ट नहीं करूँगा, हेड नहीं बनूंगा। ही कुडंट टेक द गंगा टू द यूनाइटेड स्टेट, है ना, वो क्या करना चाहते थे? यूनाइटेड स्टेट को गंगा में नहीं, गंगा को नहीं लेके जाना चाहते थे, और वो इंडिया कभी भी लीव नहीं करना चाहते थे। डिस्क्राइब बिस्मिल्लाह खान एज अ बॉय इन डुमरो। डुमरो में वो कैसे थे? At a 5, when he was 5 years old, he played गुल्ली डंडा near a pond. वो एक pond के नियर गुल्ली डंडा खेलते थे, है ना। It was in the ancient state of डुमरो in बिहार, है ना। और वो जो भोजपुरी छैतो थे, वो सॉन्ग थे टेम्पल में अक्सर गाया करते थे। और उन्होंने फिर एट द एंड ऑफ द डे ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उन्हें लड्डू भी मिला था उसकी वजह से। टू वेट 1.25 kg। इट वॉज अ प्राइज फ्रॉम अ लोकल महाराजा, लोकल महाराजा की वजह से, जो उन्होंने वो सॉन्ग गाया था उसकी वजह से उन्हें एक लड्डू भी मिल गया था। बिस्मिल्लाह खान loved India and Benares the most. Justify it by giving the two instances from the text, है ना। हमें कैसे पता चलता है कि वो इंडिया में स्पेशली बनारस को इतना प्यार क्या क्यों करते थे, है ना। हमने कहाँ देखा? He said that whenever he was in foreign country, उन्होंने क्या बोला कि जब भी फॉरेन कंट्री में होंगे, he kept yearning to see music, वो जो इंडिया को ही देखेंगे, उनकी इच्छा इंडिया को जाने की ही रही होगी, है ना। While in Mumbai, he thinks only of Benares, है ना। जब मुंबई में थे तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचते थे, बनारस के बारे में, बनारस के बारे में, उस हॉल वहाँ पे जो हॉली गंगा है उसके बारे में। एंड व्हेन इन बनारस ही मिसेस द यूनिक, जो वहाँ पे जो उसकी फेमस स्पेशल थिंग थी उसको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान्स अचीवमेंट। उसके अचीवमेंट क्या थे? ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, है ना। एज अ 5 years old ही यूज्ड टू विजिट बिहाजी टेम्पल जुमरोन टू सिंग भोजपुरी, है ना। वहाँ पे जाके वो टेम्पल में जाके वो भोजपुरी जो सॉन्ग था वो प्ले करते थे, गाते थे, और उनकी वजह से उनको लड्डू मिल गया था। वो उनकी फर्स्ट अचीवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान नॉट डेवलप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ सिनेमा? वो सिनेमा की लाइफ में ज़्यादा क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे? बिकॉज ही डिडंट गो बियॉन्ड विजय भट्ट्स गूंज थी शहनाई, है ना। और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा फिल्म, है ना। ही एक्चुअली फाउंड द फिल्म वर्ल्ड आर्टिफिशियल एंड ग्लैमरस। ही डिडंट हैव सच अ टेस्ट, उनका इतना टेस्ट नहीं था उनके बियॉन्ड जाने का। ऑल्सो ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज विद द म्यूजिकल कंपल्शन इन टू वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। वो सिनेमा की वजह से सिनेमा में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे। लॉन्ग क्वेश्चन देखो बेटा।
Why was Benair so important to Bismillah Khan? Benair उसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों था? She came to Benares at the age of 6. वो 6 year की एज में Benares आ गए थे. Benares remained a part of Bismillah Khan's life. वो एक important part बन चुका था. Benares offered him more than he wished, है ना? वो उन्हें जितने वो विश करते उससे ज़्यादा उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर होता था. He was exceedingly fond of Benares. It demand for him the most wonderful town in the world. वो सबसे ज़्यादा wonderful town था, है ना? गंगा रिवर पे जाना उनको अच्छा लगता था. वो नहीं रह सकते थे. और जो उनके अली बख्श उनके अंकल थे वो उन्हें म्यूज़िक सिखाते थे, है ना? और वो शहनाई प्ले करना सिखाते थे. सो वो अकेले में प्रैक्टिस करते रहते, है ना, घंटों घंटे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा. एंड द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम. और जो पानी का बहाव था गंगा का वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बिस्मिल्ला खान नॉट वेंचर इनटू फिल्म? वो फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए? क्योंकि उनका जो एटमोसफियर था वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस कर चुके थे, है ना, ग्लैमरस वर्ल्ड का. इसीलिए वो उनका टेस्ट नहीं था. उनकी एक स्पिरिचुअल स्पिरिट थी और वो अपने आप को अननेचुरल थिंग्स में, अट्रैक्टिव थिंग्स में इन्वॉल्व करना चाहते थे वो. एंड ही डिडंट वांट टू गो थ्रू द अननेचुरल थिंग्स में वो नहीं जाना चाहते थे. क्लियर? सो दिस इज द होल समरी. आपको जो है 2 parts I have taught you. I hope you will learn it. Okay, and I hope you understood it very well. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. When I will conduct your oral test,